let's start talking about the social responsibilities of the business. कैसा है कि इमर्जिंग वर्ल्ड में इन द अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज नाउ people have started understanding that there are the situations where people are looking at you as if you are exploiting them. People are looking at you like हमारे केस में तो हम लोग ये जनरली देखते हैं. People would come to us at Ekatvam and they would keep hyping this out every time that we have been observing the fees of the other classes and your classes and you are exorbitant. Of course, we are higher but not exorbitant. Why? The kind of services that we are providing, the kind of things which we are covering, that cannot be compared. The kind of practicalities that we are implementing, the kind of knowledge that we are sharing, there's a difference between the two. And that cannot be compared. You cannot compare a subject by subject. वो भी अकाउंट्स पढ़ा रहा है, तुम भी अकाउंट्स पढ़ा रहे हो. ऑफ कोर्स इसीलिए तो हमारे पास बच्चे ज्यादा आ रहे हैं ना, राइट? आधी फीस होने के बावजूद भी किसी और की. कहने का तात्पर्य क्या, we are charging higher price does not mean we are exploiting the society. It is like if you are going into a hotel like Ritz Carlton. पुणे में एक है छोटा सा होटल रिट्स कार्ल्टन नाम से एयरपोर्ट रोड पे है. उनका एवरेज रूम रेंट in the slack season is 18,000 a night plus GST. 18,000 a night plus GST. Room size is somewhere around what? 300 square feet? 350 square feet. वहीं पुणे में ठेठ FC रोड के पास में रैमी ग्रैंड नाम का होटल है. And that Remy Grand Hotel also is providing the room of around 300 to 350 square feet. They charge the average room rental of 3,000 overnight. 6 times Ritz Carlton. बंदा वहां भी सो रहा है, इधर भी सो रहा है. क्यों भाई? तुम तो exorbitant हो गए, right? If you go and check Ritz Carlton का जो buffet breakfast होता है ना, it contains at least 107 different items. Buffet breakfast, huh? It contains 107 different items. If you want to have it, तो उनका ब्रेकफास्ट, सिर्फ ब्रेकफास्ट जो लेने जाता है उसको 2000 प्लस जीएसटी लगाया जाता है ब्रेकफास्ट के लिए. The point that I'm trying to highlight is exorbitant and high price. These are two independent concepts, two different concepts. कोई बंदा क्वालिटी के हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा. उस हिसाब से तो BMW is charging nonsensical prices. Correct or not? या फिर फॉर दैट मैटर forget about BMW, JLR, Jaguar Land Rover, there वो कौन सी गाड़ी आती है उनकी, डिस्कवरी, जो अभी की आ रही है डिस्कवरी, दैट कम्स एट समवेयर अराउंड 97 to 98 लाख रुपीस ऑन रोड प्राइस. 98 लाख रुपीस की डिस्कवरी, साइज सिमिलर टू क्रेटा, इंजन कैपेसिटी 2.5 लीटर्स. वो उसका एक वीडियो आया हुआ है डिस्कवरी का, एंड दे हैव क्लाइम्ड लाइक दिस. That vehicle has climbed. It has gone just like that without applying the brake, and it did not stop. And even if that particular road had the turns, still it kept going like that. It had that capacity. And that too on what? On the stairs, not on the flat road. On the stairs. It has climbed like this and there was no visibility in front.
and it suddenly applied the brake and it could stop. That's what is the quality for which they are charging the price. So you cannot say that something which is charging higher price is not responsible socially. If the society requires such kind of product, then they will be required to pay such kind of prices. By charging such kind of price, you should not be providing the substandard goods. मतलब if Louis Vuitton kind of company or Chloe kind of company, Chloe bags बनाती है, CHLOE, Chloe. हम लोग Chloe मतलब pronunciation के लिए थोड़ा सा easy पड़ता है, Indian you know. Chloe, CHLOE is the name of that particular company. इसका वो तुम्हारा पॉकेट साइज क्या बोलते हैं उसको, बैग को, वो छोटा वाला होता है जो, छोटा वाला पर्स जो होता है, वॉलेट नहीं, वॉलेट से बड़ा होता है, हैंडबैग काइंड ऑफ, पर विद द स्ट्रिंग्स. दिस हैंडबैग ऑफ क्लो with the strings come at what rate? Approximately 80 to 1 lakh. इससे अच्छा मैं हांगकांग लेन से एक छोटा वाला बैग लेके आएगा, उसमें 1 लाख रुपए रखेगा, राइट? 1 लाख रुपए का बैग लेने के बजाय. Why the people would buy? There is a company called as Birkins. Birkin स्टॉक वाली नहीं, Birkins. इनके पर्सेस एंड वॉलेट्स जो लिमिटेड एडिशन वाले आते हैं ना, इनके प्राइसेस बढ़ते हैं बिकॉज दोज आर लिमिटेड एडिशन. ओरिजिनल प्राइस कितना? पहली बार जब बेचते हैं लोग लिमिटेड एडिशन, लाइन लगा के कि हम लोग सिर्फ 100 बैग बनाएंगे, उतने ही बेचेंगे. लोग वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखवाते हैं कि हमें भी चाहिए. और कितने बेचेंगे? 100. कितने में? 15 लाख रुपए प्रति बैग. बैगवती याद है वो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें बैगवती 15 लाख वाली, दैट काइंड ऑफ बैग. एंड दीज काइंड ऑफ बैग्स लेटर ऑन इंक्रीज देयर वैल्यूज. लोग यूज करके 2-2, 3-3 साल बाद में बेच देते हैं, और खरीदार बैठे हैं ज्यादा प्राइस पे करके. सर गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सर. अबे मिलते ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? Those are available in the limited supply. Now, is this not complying with the social responsibility? Those people need it. We are making it. We are socially responsible for that. Right? So, कहने का तात्पर्य, हाँ, इस तरह का कस्टमर इंपल्सिव होता है, इस तरह का कस्टमर हमेशा इग्नोरेंट होता है. That customer will only look at the price. कितना पैसा मांग रहे हैं. अगर ज्यादा मांग रहे हैं मतलब लूंगा, कम मांग रहे हैं मतलब घटिया क्वालिटी. That is what their mindset is. Seriously, हमसे एग्जैक्ट रिवर्स. हम लोग नॉर्मली 500 की प्रोडक्ट को अगर 505 रुपए मांग जाए, 5 रुपया ज्यादा काहे बे, काहे का 1% चार्ज लगाए हो? तो तुम होटल्स में चले जाओ, रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, वी लेवी 10% सर्विस चार्ज. 90% ऑफ द पीपल डोंट विजिट एट सच काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स. नहीं यार, ये 10% एक्स्ट्रा लगाता है. एंड देन देयर आर द होटल्स who will confidently charge it and people will go to such kind of places only. क्यों? तो सर्विस चार्ज लगा रहा है मतलब सर्विसेज अच्छी देगा. That's the kind of expectation, right? हम तो आजकल जोमेटो और डाइन इन पे देखते हैं, इजी डाइनर, जोमेटो, डाइन आउट पे कौन सा वाला मिल रहा है भाई, जिसपे 35% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है, वो वाले रेस्टोरेंट में अपन जाएंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट. और वहां जाके भी उसको पूछते भाई कुछ और डिस्काउंट नहीं है, और कुछ नहीं तो नहीं, एक फिंगर बॉल तो एक्स्ट्रा दे जा. सो पॉइंट इज व्हाट द बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन सच अ वे दैट दे आर बिहेविंग रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी. एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी. क्यों? रॉ मटेरियल सोसाइटी से लेंगे, हम लोग के पास लेबर सप्लाई सोसाइटी से आ रहा है, मशीन्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसी रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस हो रही है. एंड दैट्स व्हाई वी आर डिपेंडेंट ऑन द सोसाइटी फॉर द प्रोडक्शन एज वेल एज हमारे जो गुड्स बनेंगे दोज विल बी कंज्यूम्ड बाय द सोसाइटी ओनली और नॉट. एंड दैट्स व्हाई वी आर डिपेंडेंट बोथ वेज ऑन द सोसाइटी. इट इंप्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजमेंट of a business enterprise
or management of a business enterprise, it is to protect the society. Society contributes toward the success of the business organization. Therefore, we are supposed to protect the society. अगर सोसाइटी हमें सपोर्ट कर रही है तो हमें सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है. The business is expected to provide return to the society. This responsibility is called as social responsibility. The firm is not expected to focus only on profits, but also on the welfare of the society. पैसा कमाना तुम्हारा धर्म है, तुम पैसा कमाओ, पर इसका मतलब तुम सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. Right? The society works within the entity. Business interacts with the society. What is the need of social responsibility? The very first concept of trusteeship. What is concept of trusteeship? Pappu बोल के गए थे that the wealthy are businesses are the trustees of the society, trustees of the poor. कि उनके लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो ये यूज करके इसमें से पैसा बना रहे हैं, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स दोज मेंबर्स. एंड दैट्स हाउ द बिजनेसेस आर सेड टू बी द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, because they are taking care or they are utilizing the resources which are available to the society. Then changing expectations of the society. पहले का समय गया कि जो भाई बोलेगा, वो क्या बोलते थे दुकानदार को, बनिया 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 जो बेचेगा हम वो खरीदेंगे. That used to be kind of thing, but nowadays बनिया will sell only what we demand. Expectations have changed or not? Baniya is expected to supply the goods to my home. Expectations. Baniya should give me the best quality product at the cheapest prices. Expectations. The expectations of the society is changing from time to time. You are worried about your reputation. भाई कोई मेरे बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, तो हमको डर लगता है यार हमारे बारे में सिर्फ अच्छा ही बात करना चाहिए. Why? क्योंकि रेपुटेशन होगी तो लोग और आएंगे नहीं, भले ही वो फेक रेपुटेशन क्यों ना हो, बट रेपुटेशन होनी चाहिए मार्केट में. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यों? एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेपर कट कर पेड़ कट करके ही पेपर बना रही है, so it is the responsibility of that paper manufacturing company to protect the environment as well. एक साइड अगर आपने पेड़ काटे हैं तो दूसरे साइड आप नए पेड़ उगाओ या फिर एनवायरनमेंट को बचाओ इन डिफरेंट वेज, बाय विच वे द एनवायरमेंटल डिसरप्शंस आर रिड्यूस्ड. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं, चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स की बात करो, चाहे आप स्केर्स मिनरल्स की बात करो, चाहे आप नेचुरल रिसोर्सेस की बात करो, those are available in limited quantity, and as those are scarce in nature, that's why we are expected to protect such kind of resources and use to the best possible manner, reducing the wastages thereof. Government controls, जैसे कि आजकल आपके ऊपर कंट्रोल किस तरह के, आपको कई सारे लॉज फॉलो करने होते हैं. फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, लेबर लॉज, you have to follow the sale of goods act, you have to follow the wages act, you have to follow the measures and standard weights and measurements act. ये सारे क्यों फॉलो करने पड़ते हैं? काइंड ऑफ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, सो दैट वो नायक पिक्चर देखी तुमने अनिल कपूर वाली, उसमें वो वर्ल्ड कप दोनों साइड से 2.5 लीटर वो घासलेट पहले वो ऐसा पीपा आता था, वो कंटेनर जो होता था जिसमें घासलेट का वजन हुआ करता था, घासलेट मोजा जाता था. That was the container available, उसमें डाला कि 2.5 लीटर पे घासलेट रहेगा, वो केरोसिन 2.5 लीटर ही रहेगा. बट व्हाट दीज पीपल यूज्ड टू डू, वो नीचे से उसको छोटा कर देते थे, ऊपर से बराबर दिखता था बट नीचे से छोटा कर देते थे, वो 2.5 लीटर कभी 2.5 लीटर निकला ही नहीं. दिस वाज व्हाट, दिस वाज एक्सप्लॉइटेशन. और ये इसको कंट्रोल लाना है तो उसके लिए वेट्स एंड मेजरमेंट्स एक्ट है. आप कई बार ऑब्जर्व करो, वो वजन काटा होता है, अगर वजन कांटे पे बराबर वो कैलकुलेशन नहीं हो रहा, मेजरमेंट नहीं हो रहा है, तो दे कैन बी जेल्ड फॉर इट. इट इज द प्रोविजन ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट, सो दैट अगर मैं 100 ग्राम कोई चीज का पैसा दे रहा हूं तो मुझे 100 ग्राम ही मिलनी चाहिए. अगर मैंने 5 किलो शक्कर मांगी है तो मुझे 5 किलो शक्कर ही मिलनी चाहिए. वो कोई भी वजन कांटे पे तोलूं तो इट शुड कम एज द सेम और नॉट. दैट्स व्हाट इज द गवर्नमेंट कंट्रोल.
देन लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, आपका खुद का इंटरेस्ट। आप एक सोशली रिस्पॉन्सिबल अगर ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है तो आपको सोसाइटी को बेटर सर्विसेज देते रहनी पड़ेगी, बेटर क्वालिटी के गुड्स बेचते रहने पड़ेंगे, रीजनेबल प्राइस पे बेचते रहने पड़ेंगे, एंड दैट टू ऑन अ कंटिन्यूअस एंड रेगुलर बेसिस। यू शुड नॉट होर्ड द प्रोडक्ट, संभाल के रखो, बाद में प्राइस बढ़ेगा तब बेचेंगे। यू शुड कीप डूइंग द रेगुलर सप्लाई। ग्लोबलाइजेशन हैज बेसिकली ब्रॉट अ काइंड ऑफ बिग कॉम्पिटिशन। आज की तारीख में आप सिर्फ आपके लोकल ट्रेडर्स के साथ में डील नहीं कर रहे हो, जो लोग आपस में कार्टेल बना के बैठते थे, भाई हम लोग ऐसा ही तय करेंगे, सबके सब सेम प्राइस चार्ज करेंगे। यू हैव गॉट द इंटरनेशनल कंपटीशन नाउअडेज। भाई मुकेश भाई भी डरा हुआ है आजकल, वो कौन है वो, क्या नाम उसका, एलोन मस्क की वजह से, जब से उसने बोला है सैट फोन लॉन्च करूंगा, अब तब से वो बंदा भी डरा हुआ है। ग्लोबल कंपटीशन इज देयर, राइट। देन द रोल ऑफ मीडिया। गौर से देखिए इस व्यक्ति को, मतलब किसी ने अगर कुछ गड़बड़ की, इमीडिएटली मीडिया वाले पहुंच जाते। मीडिया तो छोड़ दो, आजकल वीडियो निकालना बड़ा आसान हो गया, तो वीडियो निकाला, वीडियो अपलोड और वायरल, लोग खुश तमाशा देख रहे हैं, राइट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स कैन मेक द लॉट ऑफ डिफरेंसेस नाउअडेज। देन व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स। आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे ओनर्स है, इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज है, इन सब के प्रति, या सोसाइटी है या आपका कंज्यूमर है, इन सब के प्रति आपकी इंडिविजुअली एज अ बिजनेस कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। द वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स। ओनर कौन? जिसने, जो बिजनेस चला रहा है, जो धंधा चला रहा है, जिसने बिजनेस में मेनली पैसा लगाया हुआ है और रिस्क उठाया हुआ है। तो उस बंदे का एक्सपेक्टेशन क्या होगा? भाई तू रीजनेबल प्रॉफिट कमा ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किए, जो भी वो एफर्ट्स डाल रहा है, उसके हिसाब से उसको पैसा रिटर्न के तौर पे मिलता रहना चाहिए। रीजनेबल प्रॉफिट्स, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। आप पैसे को ऐसे ही सिर्फ रखे हुए हो, उसको प्रॉपर तरह से चैनलाइज नहीं कर रहे हो, आप ब्याज, एक साइड ब्याज भर रहे हो और दूसरी साइड आप सिर्फ पैसे रखे हुए हो, दैट काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन। जरूरत नहीं है लोन ही मत उठाओ, जरूरत है तो पैसा उतना ही उठाओ जितने की आपको उस समय पे जरूरत है। Exploring the business opportunities. If you are getting the better opportunities, जिससे you will be able to grow the profits, grow the trade, grow the activities, in that case you should keep on exploring such kind of scenarios. Minimize the wastages. Optimum utilization करोगे तो wastages अपने आप घटेंगे, और wastages घटेंगे तो cost घटेगा, cost घटेगा तो profit बढ़ेगा, right? देन इफेक्टिव यूसेज ऑफ फंड्स। आपने जो पैसा लाया हुआ है, आपने जो पैसा मंगाया हुआ है, उसको आप प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके, जिससे आपको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स मिले, ऐसी जगहों पे उसको इन्वेस्ट करके आप पैसा बना रहे हो। देन यू आर प्रोवाइडिंग द पीरियोडिक इंफॉर्मेशन टू देम। आप पीरियोडिकली आपके इन्वेस्टर्स को, आपके ओनर्स को बता रहे हो कि भाई हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, किस तरफ जा रहा है, हम और क्या एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमारा ग्रोथ किस तरह एक्सपेक्टेड है, और you should be expanding and diversifying on a continuous basis. जैसे जैसे पैसा आएगा, you should keep flowing back the profits, and those flowed back profits you should be using further for your expansion, for the growth, for the diversification. आप नए नए बिजनेस सेगमेंट्स में घुसने की कोशिश करो। फेयर प्रैक्टिस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यू शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। आप अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान मत करिए, दैट इज फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। एफिशिएंट बिजनेस, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको आप इस तरह से कंडक्ट कर रहे हो एज इफ इट इज योर ओन मनी। आप उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस में नहीं जा रहे हो, आप मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप किसी भी तरह से किसी भी बिजनेस में, किसी भी सिचुएशन में बिजनेस की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। दैट इज व्हाट यू कॉल एज the efficient business and creation of goodwill. The brand image should continuously be created. What is the responsibility towards the investors? There is a difference between owners and investors. Owners जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी इन्वॉल्व है, whereas investors कौन है? एक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर शेयर होल्डर्स, small shareholders who have invested the money but they are not involved into your day-to-day activities. उनकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी? पहला, उनके साथ रेगुलर मिलते रहो, मेल जोल बनाए रखो,
क्योंकि मेल जोल बनाए रखोगे तो उनका कॉन्फिडेंस तुम में डेवलप होगा और तुम उनमें कॉन्फिडेंट रहोगे, राइट? मीटिंग्स ऑफ इन्वेस्टर्स टू बी कॉल्ड रेगुलरली टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स. हैंडलिंग ग्रीवेंसेस. मुझे अगर कंपनी के प्रति कोई प्रॉब्लम है, मुझे मेरी ओनरशिप के प्रति कोई प्रॉब्लम है, मैंने अगर कोई कंप्लेंट लॉन्च की हुई है, आई शुड बी गिवन द रीजनेबल रेजोल्यूशन टू दैट. दैट इज व्हाट यू कॉल एज हैंडलिंग ग्रीवेंसेस. Effective and satisfactory methodology should be adopted to handle the investors' grievances. Proper disclosure of information. आप कोई भी गलत या सही, अच्छी या बुरी इंफॉर्मेशन को अपने इन्वेस्टर से छुपाए नहीं. You keep giving them the complete disclosure, full disclosure, fair disclosure. You're not hiding any information from your investors. The full and factual information should be given to the investors. The financial performance should be provided correctly for the decision making. Return. The investors would expect what? FD से ज्यादा रिटर्न दो, ताकि they would be continuously remaining invested in your company. So there has to be a investor should get the fair returns on the investments in the form of interest or in some cases in the form of dividend. Maintain the transparency of what kind? आप कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे छुपा नहीं रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से हर इंफॉर्मेशन को अपने इन्वेस्टर्स के सामने डिस्क्लोज कर रहे हो. Solvency, you are expected to maintain that you are not going into the bankruptcy. That means you are maintaining the position of solvency. Then responsibility towards employees बहुत है, बहुत ज्यादा है. जैसे जॉब सिक्योरिटी, भाई तेरे को रख लिया, कल के कल निकाल देंगे, ऐसा नहीं. दैट पर्सन इज हैविंग द जॉब सिक्योरिटी. भाई तुझे रख लिया है तो ठीक से काम करते रहियो, ठीक से अगर काम करता रहेगा तो यू विल कीप कंटिन्यूइंग डूइंग द बिजनेस, राइट? सिक्योरिटी ऑफ जॉब इज प्रोवाइड्स मेंटल पीस. व्हाई डज इट प्रोवाइड मेंटल पीस? क्योंकि वो बंदे को पता होता है कि ये काम बिजनेस में, लैपटॉप कर देंगे, ये बिजनेस में मैं रेगुलर काम करता रहूंगा और रेगुलर काम करता रहूंगा तो मुझे ये लोग निकाल नहीं रहे, राइट? कमिटमेंट विद द वर्क विल रेज द एम्प्लॉइज मोरल एज वेल. देन फेयर रेम्यूनरेशन. यू आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग दैट पर्सन, यू आर गिविंग देम द रीजनेबल अमाउंट so that they will be continuously motivated to work. Attractive salaries and other incentives and bonus etc. should be given. Suitable wage plans should be devised to provide for the promotion and increment. Then health and safety. You are not trying to put them into the situation where their health or their safety is continuously at the stake. You should take care of that. And if at all, you should be giving them the proper gear in which they will be able to protect their life. Canteen and other hygienic facilities should be provided. Proper maintenance of machine and safety equipment should be provided. Then good working condition depending upon the job. आप जिस तरह के काम में हो उसके हिसाब से कंडीशंस मेंटेन किए जाने चाहिए. इट शुड नॉट बी अ रैंडम काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन. वो आप कई बार ऑब्जर्व करो, रास्ते में खुदाई हो रही होती है. अब खुदाई हुई, वहां पे हमेशा रिस्क होता है, रिस्क ऑफ लूजिंग आउट ऑफ योर ओन लाइफ. तो इस केस में आजकल कई सारी कंपनीज ने कंटेनर्स बनाए हैं कि आप खुदाई करते जाओ, वो कंटेनर के थ्रू एम्प्लॉय को नीचे भेजो ताकि उसकी लाइफ प्रोटेक्टेड रहे, वो कहीं ना फंसे. आपका कंटेनर आप एग्जैक्टली बाहर निकाल सकते हो और वो बंदा बच सकता है. तो दोस काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल. देयर शुड बी प्रॉपर वर्किंग आवर्स एंड रीजनेबल ब्रेक्स. देन ट्रेड यूनियंस शुड बी सपोर्टेड. ट्रेड यूनियंस को इग्नोर करके काम नहीं बनेगा. टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस, रिकॉग्नाइज द ट्रेड यूनियंस. डोंट फॉलो डिवाइड एंड रूल. सॉर्ट आउट द लेबर प्रॉब्लम्स इफ एट ऑल बाय हैविंग द टॉक विद द यूनियंस. एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. आपके एम्प्लॉय को आप रेगुलरली अपग्रेड करते रहो. जितना एम्प्लॉय अपग्रेडेड रहेगा उतना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा और उस एम्प्लॉय के लिए भी सही होगा. देन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? आपके एम्प्लॉय अगर आपकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो दे विल बी गिविंग यू द ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन और नॉट. एंड व्हेन दे विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग द ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन, वन दे विल बी इंसेंटिवाइज्ड एंड मोटिवेटेड. यार मेरी बात सुनते हैं. और दूसरा आपके लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलती है.
Workers must be encouraged to take part in management. Suggestion scheme and profit sharing can be engaged, and it raises the employees' morale, brings sense of belonging to the employees. Then proper grievance procedures. एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, किसी एम्प्लॉय को अगर मैनेजमेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, तो उसके लिए उनको कंप्लेंट बॉक्स या कंप्लेंट रेज करने की मौका मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उस कंप्लेंट का रिजोल्यूशन भी होना चाहिए, दैट इज ग्रीवेंस प्रोसीजर. Grievance procedure to handle the employees' complaints. Queries should be sorted quickly. Investigations and necessary action should be taken. Then promotion and career opportunities. उनको growth मिलती रहेगी तो आपका employee आपकी business में बढ़ता रहेगा और आपका business भी आगे बढ़ता रहेगा या नहीं. Offer adequate opportunities for promotion and growth. Proper information of qualification and eligibility is given to the employees. It creates awareness amongst the employees and motivate them. Then you should be giving the fair treatment, appreciate and encourage the specialist skills if any employee has. The code of conduct should be there so that employees are not trying to misbehave or not having any kind of wrong behavior in the organization. Protect the social political rights and allow the informal groups. Informal groups क्यों जरूरी है? क्योंकि आपस में चर्चा करेंगे तब न जाके कोई एक दूसरे को समझाते रहेंगे, right? Then responsibility towards consumers. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन सीखे, तो उसी तरह से बिजनेस की भी तो कंज्यूमर के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना. एंड फर्स्ट इन दैट इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. आप अपने कस्टमर को रीजनेबल क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के, सही क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के दे रहे हो. अब ये गुड क्वालिटी डज नॉट मीन ऑलवेज द बेस्ट क्वालिटी, देयर इज अ डिफरेंस. क्यों? Cheap products will have the cheap prices and therefore the quality will also be cheap or not. But if you are charging good price, you should be giving good quality products as well. Organization should have the quality control department for this and should allow the various standards set by the different organizations like ISO. Then fair prices. You should not be charging the exorbitant, very heavy prices. You should be charging the prices reasonable to the quality. Consumers should not be cheated by charging high prices. There must be MRP inclusive of all taxes and charges. Consumer safety. अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जिसमें कस्टमर की लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो सकती है या कस्टमर के हेल्थ पे कोई इंपैक्ट हो सकता है, फॉर सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू शुड बी टेकिंग केयर इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर सेफ्टी. जैसे आप कस्टमर को जब कोई प्रोडक्ट सप्लाई करोगे उससे कस्टमर की हेल्थ या लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, और इफ एट ऑल देयर इज एनी यू शुड मेंशन सच रिएक्शंस और सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन एडवांस. प्रोडक्ट सप्लाइड शुड नॉट अफेक्ट कंज्यूमर्स हेल्थ एडवर्सली. दो मार्केटिंग फॉर अनसेफ प्रोडक्ट्स और विथ वार्निंग शुड बी डन. जैसे सिगरेट्स के केस में आजकल अगर उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है तो इट कम्स विद द वार्निंग, या इवन पैकेट्स पे भी वार्निंग क्लियरली छपी हुई होती है. ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग. ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग. कोई एग्जैगरेटेड आपने क्लेम नहीं करने चाहिए 25 दिन में पैसा डबल जैसा, राइट? ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड ऑल द फैक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू द एडवर्टाइजमेंट. फॉल्स, मिसलीडिंग एंड वल्गर एडवर्टाइजमेंट शुड बी अवॉइडेड. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वल्गर? दैट विल बी डिसाइडेड बाय FTTI. वी विल नॉट डिसाइड इट, राइट? Then after sale service, this especially applies to the durable products. जहां आप किसी भी लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोडक्ट के बारे में डील कर रहे हो, उस केस में आपको उन प्रोडक्ट के लिए आफ्टर सेल सर्विस देना भी जरूरी है. व्हाट इज आफ्टर सेल सर्विस? व्हाट इज आफ्टर सेल सर्विस? कि आपने गुड्स तो बेच दिए पर उसके अगेंस्ट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अगेंस्ट कोई डेमोन्स्ट्रेशन देना है, तो दैट काइंड ऑफ सर्विसेज शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड्स आफ्टर सेल्स, efficient and effective after sale system should be developed. Then research and development, क्योंकि मार्केट में हर दिन नए वेरिएंट्स की डिमांड हो रही है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, तो यू शुड कीप ऑन डूइंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप कुछ नया ला सकते हो क्या? आपके नए प्रोडक्ट में कुछ आप चेंजेस ला सकते हो क्या? आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हो क्या? फॉर दैट यू विल कीप डूइंग व्हाट? द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. R&D is required to improve the products and reduce the cost.
This in turn will reduce the prices charged to the consumer as well. Then there should be a regular supply. Organization should not create any artificial shortage of the goods. Hoarding and black marketing should be avoided. Then quick and effective redressal system should be implemented. जब कोई कंप्लेंट आती है तो उसको कंप्लेंट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, कंप्लेंट का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए कोई सिस्टम लगाना जरूरी है. Suggestions from the customer should also be welcomed. Then training, free training of products, its features should be arranged by the organization. जैसे कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए गाड़ी कैसे चलाएं इसके लिए भी सेमिनार्स कंडक्ट करती है. क्यों? पता है कि हमें गाड़ी चलाना आता है, बट उसको सही तरह से, उसको इमिशन नॉर्म्स के हिसाब से, उसको आरटीओ के रूल्स के हिसाब से कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, सिखाना जरूरी है. क्यों? तो हम घर बैठ के गाड़ी चलाना सीखे हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमको रूल्स रेगुलेशन पता ही नहीं होते, या फिर गाड़ी की एफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए कैसे चलाना चाहिए वो सीखना जरूरी है. फॉर दैट पर्पज द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड. अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन. कैसे एक्सप्लॉइटेशन अवॉइड करोगे? ज्यादा प्राइस चार्ज मत करो, अच्छे गुड्स को, अच्छी क्वालिटी के गुड्स दो. बिजनेस शुड नॉट कैरी एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड अवॉइड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर. रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अन्नदाता, गवर्नमेंट, राइट? हाँ, नहीं तो कैरेमलाइज पॉपकॉर्न भी है. सीतारामन को नाराज नहीं करने का, बाकी किसी को भी नाराज करो तुम, ठीक है? टाइमली टैक्स पेमेंट्स, समय आने पे टैक्स की भरपाई करना जरूरी है. भरे तुम्हारे पास पैसा है ना है, उधार लेके आओ, पर टाइमली टैक्स पेमेंट शुड बी देयर. गवर्नमेंट imposes various taxes like GST and income tax. Timely payment is required. This helps the government in carrying out the development projects. Then observing the rules and regulations. आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई होते हैं, वो सारे के सारे आपने काटेकोर पढ़े, रिजिडिटी के साथ. यू आर फॉलोइंग इट, यू आर नॉट वायोलेटिंग इट, राइट? Follow the rules in license, rules framed by the government should be fully complied with. Follow the rules in license and carry the business in the lawful manner. Then earning foreign exchange. क्यों फॉरेन एक्सचेंज कमाना जरूरी है? तुम्हारे देश को फॉरेक्स की जरूरत है, तो तुम एक्सपोर्ट करो, फॉरेन एक्सचेंज कमाओ, ताकि अपने देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का पोजीशन फेवरेबल में कन्वर्ट होना चालू हो. Businesses should earn foreign exchange through the export of goods. It is required latter for the import of goods by the government. Economic development. Business organizations should support the government in rapid and smooth economic development. Then implementing the socio-economic policies. What is this socio-economic policies? Government बहुत सारी सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज लाते रहती है. बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन सच सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज. और आजकल सच में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट देती है, सपोर्ट नहीं पैसा भी देती है फॉर रनिंग सच काइंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बिजनेस कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड इन इंप्लीमेंटिंग द सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट. देन सजेशंस टू द गवर्नमेंट्स. कैसे, किस तरह के टैक्स लॉज लाए जाए, किस तरह का पॉलिसी चेंज लाया जाए, किस तरह के रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड है. सो दीज ऑल थिंग्स आर इन्फॉर्म्ड बाय द industry experts or the industries to the government. To form the various policies like monetary policy, EXIM policy, industrial policy or the like, business suggestions are very important. Then no favors. मतलब इसके बगैर हम लोग जी पाएंगे नहीं, पता नहीं, but you should not. कि आपने ऑफिशियल को ब्राइब कर दिया और उसके अगेंस्ट आपका कोई काम होके मिल गया. That kind of thing should generally be avoided. No favor from government should be taken by bribing or influencing the government officials. Contributing to government treasury. Contribute the funds to the government in the situation of emergencies like flood, earthquakes, etc. So these are the responsibility of the business towards the government. Next we need to talk about responsibility towards the society at large. आप जब सोसाइटी की बात करते हो तो सोसाइटी के ही तो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो ना, so that's why you should protect the environment. अगर आपका कोई एनवायरनमेंट के अगेंस्ट आपका कोई पोल्यूशन करने वाला, पोल्यूशन क्रिएट करने वाला कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है, तो भी एनवायरनमेंट को
प्रोटेक्ट करना जरूरी है. Pollution is the major problem in the current times. Business should take all possible measures to minimize the pollution, and if at all they are, then in that case they should treat such effluents so that the society is not affected because of that. Right? Better and maximum usage of resources. जो भी natural resources available हैं, उनको आप सही तरीके से उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर रहे हो ताकि उसका वेस्टेज कम हो रहा है और आपके बिजनेस के लिए फायदा हो ही रहा है. देन ओ माय गॉड, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. नहीं, ये जवानी है दीवानी 45 वन साइड चल रहा है पोल. वेल, better and maximum usage of resources. Make proper usage of available resource. Fuel, water, land, etc. should be used in an efficient manner. Reservation for weaker sections wheresoever possible. आप weaker section को प्राधान्य दो या weaker section के लिए आप काम इवॉल्व करो, जिस तरह से weaker section को भी आप डेवलप या ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो. Economically weaker sections of the society should be protected. These people expect financial and other help from the businesses. Then डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स. कल हम लोग एग्जांपल ले रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के टाइम पे, या आज ही शायद एग्जांपल लिया था. मेघालय, मिजोरम वगैरह जो एरिया है, नहीं सुबह का लेक्चर था, 11th OCM का लेक्चर था, उसमें डिस्कशन किया था मैंने. मेघालय, मिजोरम, इस तरह के जो एरियाज हैं वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एडवर्स वर्किंग कंडीशंस. अब इस वजह से वो रीजन आज भी अंडर डेवलप्ड रह गया. अब उन रीजन्स को अगर आपको डेवलप करना है तो आपके इंडस्ट्रीज को वहां जाके काम करना पड़ेगा. So businesses should carry out their activities in such backward regions as well. Then financial assistance, जहां जहां जरूरत है वहां वहां आपने financial assistance देना चाहिए. Donations and financial assistance for various social causes should be done. Various awareness programs like anti-drug competition should be supported. Then prevent the congestions. Congestions of what? Congestions of industries, congestions of the people should be avoided, क्योंकि it can lead to the stampede kind of situation, it can lead to the mass death kind of situation. जहां जहां कंजेशन होगा वहां वहां ये प्रॉब्लम होने का पूरा पूरा चांस होता है. जैसे अभी कल से महाकुंभ में सिचुएशन बनने वाली है, वहां यू आर गोइंग टू हैव, क्योंकि लगभग कितने 13 करोड़ लोग विजिट करने वाले हैं इन अ पीरियड ऑफ ओनली 25 days. 13 crore population is going to visit to Prayagraj, and if that's the case, of course people will be having the thought यार वहां कुछ गड़बड़ हो गई तो, right? और इसलिए सेटअप भी उतना ही है. Avoid congestion of industries in the cities. Industry should be preferably located in the industrial areas only. Then protest against anti-social activities. अगर कोई anti-social activities में जा रहा है तो उसको avoid करना चाहिए, support नहीं करना चाहिए. Should not participate in the anti-social activities. No financial help should be made for such things. आप टेररिस्ट बजटिंग कर रहे हो, टेररिस्ट फंडिंग कर रहे हो, that should not be the case, right? That is anti-social or not. तो तुम्हारा देश के प्रति क्या प्यार है और क्या ग्रज है, forget about that. टेररिस्ट को तो फंडिंग नहीं होनी चाहिए, लॉजिकली स्पीक. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन घट नहीं रही है. So this was about the responsibility towards the various stakeholders. The next one is business ethics and the social responsibility, corporate social responsibility. These are the two aspects that we need to talk about. अब business ethics की जब हम बात करते हैं तो हम हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखते हैं और उस कोड ऑफ कंडक्ट को हमें फॉलो करना जरूरी है. व्हाट वी कॉल एज द बिजनेस एथिक्स. आप एक ऐसा एनवायरनमेंट खुद के लिए कंडक्ट बना रहे हो जिससे आप बिजनेस को ठीक से, आप उस बिजनेस को ठीक से चला रहे हो. तो कोड ऑफ कंडक्ट की कंसेप्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स टू कैरी आउट अ बिजनेस एक्टिविटीज. इट हेल्प्स इन डाइविंग इन द रॉन्ग. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग, होना चाहिए डाइविंग नहीं, अवॉइडिंग इन द रॉन्ग एंड राइट पाथ. इट्स अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस डीलिंग विथ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, लीगल और इलीगल. मतलब क्या?
मैं पटाखे बेच रहा हूं। अब पटाखे बेचना ये सही या गलत, बिकम्स अ क्वेश्चन। पटाखे बेचना गलत नहीं है, पर घटिया क्वालिटी के पटाखे बेचना गलत है। दैट इज व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। मैंने अगर सपोज किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस 2000 रुपए तय किया, उस 2000 रुपए की वर्थ 2000 रुपए है या नहीं, वो तय करना इज बिजनेस एथिक्स। मैं अगर मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की फीस 60,000 रुपए चार्ज कर रहा हूं, तो 60,000 रुपए का वर्थ मैं सप्लाई कर रहा हूं या नहीं, दैट इज बिजनेस एथिक्स। मतलब मुझे यह कहा गया था, ओसीएम की बैच जब लॉन्च की गई थी, 9,500 रुपए फीस। अब 9,500 रुपए की फीस प्लस सीतारामन मैडम जीएसटी, तो ये जब फीस चार्ज की गई तो 9,500, वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट, टुडे द पीपल हु हैव कंप्लीटेड द ओसीएम बैच, दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे हैव पेड इज वेदर दे हैव गॉट और नॉट। मतलब जो बंदा 3,000 रुपए देके कहीं से पढ़ रहा है उसको क्या मिला है, और जो बंदा यहां पैसे देके आया है उसको क्या मिला। ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ प्राइस। दैट्स व्हाट यू कॉल एज बिजनेस एथिक्स। कि मैंने प्राइस ही चार्ज नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने प्राइस चार्ज करने के बाद उसका वर्थ सप्लाई भी करना चाहिए, गुड और बैड वाली कंडीशन में। मतलब कल मैं एक 5 स्टार रिजॉर्ट में गया, सॉरी रेस्टोरेंट में चला गया था, वहां पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, एक तो उसका नाम ही नहीं समझा मेरे को, तो कुछ स्लाइडर वाइडर ऐसा कुछ तो नाम यूज किया था, साइडर स्लाइडर्स कुछ तो नाम यूज कर रहा था। 800 रुपए की कीमत चार्ज की है, प्लस सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी, राइट, लगभग 900 रुपए हुआ था, 900-950 रुपए एक डिश का। 3 छोटे छोटे बर्गर दिए इसने पनीर डाल के, 3 छोटे छोटे बर्गर पनीर डाल के। मैंने भी चुपचाप खाया उसमें से एक, यही सोच के कि जिस जगह पे तू आया है ना मनीष, ये उसका पैसा है, ये इस बर्गर का पैसा है ही नहीं। तुम जिस जगह पे जाते हो, तुम जिस जगह पे वो चीज खा रहे हो, जिन लोगों के बीच में बैठ के तुम वो चीज खा रहे हो, उसका पैसा देते हो। यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये जो 5 स्टार प्रॉपर्टीज होती है, ये इस चीज का पैसा नहीं लगाती है कि तुमने क्या खाया, वो इस चीज का पैसा लगाती है कि तुमने कहां खाया, तुमको किस तरह से सर्व किया गया, किस तरह से तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया गया। मतलब जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या ऑर्डर करना चाहिए, तो वो बंदा कहने लगा कि सर शेफ को बुलाऊं, यू डिस्कस विथ हिम व्हाट यू वांट एंड ही विल मेक इट फॉर यू। और लिटरली उसने शेफ को बुलाया, तो वो शेफ मुझ तक के आया, मुझसे डिस्कशन करके उसके बाद में उसने कहा कि सर आई विल मेक द डिश फॉर यू, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। बाद में जब मेन कोर्स का ऑर्डर करना था तो पॉइंट इज व्हाट, दिस काइंड ऑफ सर्विस यू डोंट गेट इन द लोकल रेस्टोरेंट। उधर मेनू फिक्स है, भाई इधर से ऑर्डर करो, इधर में से जो चाहिए वो बोलो, उतना ही बना के आएगा, क्योंकि हमारे शेफ को उतना ही चाहता है, क्योंकि इधर शेफ नहीं होता, इधर उस्ताद होता है। यहां पे जो लोकल रेस्टोरेंट्स में शेफ होता है ना, उसको उस्ताद बोलते हैं, तो इधर उस्ताद होता है, तो उस्ताद को जितना मालूम है उतना ही करेगा, उधर उधर दिमाग नहीं लगाने का। तो दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स। तो बिजनेस एथिक्स कि मेरे पास आने वाले बंदे को मैं लो प्राइस चार्ज करके खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करके खुश करने की कोशिश करूंगा। दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स। लोकल रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहां पे तुम्हारा खाना होने के बाद में वो वेटर इमीडिएटली बिल क्यों लेके आता है, निकल भाई अगला गिराएगा आ रहा है। तुम ऐसी प्रॉपर्टी में चले जाओ, 4 घंटे बैठो और तुमने सिर्फ एक ही डिश मंगाया है, वो बंदा तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तुम आए और ये चिल, इसी का पैसा लेते हैं, तुम यहां आके चिल करो। तो दैट्स द काइंड ऑफ डिफरेंस। What are the features of business ethics? Number 1, there is a code of conduct. कौन बनाता है कोड ऑफ कंडक्ट? व्यापारी संगठना। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो रिटेल बिजनेस वालों की अपनी एसोसिएशन है, ज्वेलर्स की अपनी एसोसिएशन है, मेडिकल वालों की अपनी एसोसिएशन है, और इन सब एसोसिएशंस की एक और एसोसिएशन है। Why these all associations are made? To create a code of conduct, कि आप कोई भी एक्टिविटी गलत तरीके से सोसाइटी को इंपैक्ट करते हुए या फिर मार्केट का नाम खराब नहीं होना चाहिए, मार्केट में सारे लोग एक ही नाम से जाने जाने चाहिए या एक ही तरीके से जाने जाने चाहिए, उसके लिए आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हो।
गिव्स प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप्स, वॉलंटरी इन नेचर, जो भी आए सबका वेलकम, नहीं तो भीड़ कम. That kind of association is this particular organization based on the moral and social values. Morally, whether it is correct or not, whether it is right or wrong, ये तो morality ही decide करेगी ना. This cannot be decided at the verge, at the benchmark of money, and that's why the morality is more important as compared to the social, as compared to the monetary impacts. Provides the basic framework कि आपको बेयर मिनिमम क्या करना है. इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो, बेयर मिनिमम इतना तो मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड आप चाहे तो आप ज्यादा मेंटेन कर सकते हो. रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस. क्यों? सिंपल सी बात है. मान लो एक मार्केट है जिसमें 10 अलग अलग सेलर है और 10 के 10 सेलर सेम टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हैं. अब पहले वाले ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए 10% का डिस्काउंट स्टार्ट किया, कस्टमर खुश, सारे कस्टमर उसके पास. दूसरा वाला बोलता है यार परवड़ता तो नहीं है, पर अब ये कर रहा है तो मेरे को भी करना पड़ेगा, ये भी 10% डिस्काउंट. कस्टमर बटा, बाकी 8 नाराज. इन्होंने एसोसिएशन बुलवाई, रूल बनाया, व्हाट, इसके बाद ये मार्केट में कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा. मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिकली ऑल द कस्टमर्स विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट एट द सिमिलर काइंड ऑफ प्राइसेस और नॉट. तुम मार्केटिंग अच्छी करो ना, तुम प्रोडक्ट अलग बेचो, पर डिस्काउंट कोई भी नहीं देगा. दैट इज द सिस्टम. तो एक बार तुमने फ्रेमवर्क बना दिया, इसका गाइडेंस देना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा. अब हम वो मार्केट में ना लोग बाहर ऐसे सामान रखना चालू करते हैं. पहले बंदा 2 फुट आगे रखता है, फिर 4 फुट आगे रखता है, फिर रास्ता अंदर कर लेता है और उसके ऊपर अपने बाम्बू लगा देता है कि ये मेरा दुकान. दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट परमिटेड. तो पहले उनको गाइड किया जाता, भाई ये गलत है, माल अंदर ले. नहीं तो फिर वो पीएमसी वाले आते हैं, डायरेक्ट माल उठा के चले जाते हैं. व्हाट इज दिस? पनिशमेंट. सो इट हैज टू बी continuous guidance should be there, continuous education should be there, that what is morally correct, what is morally wrong. It's a relative term. Relative मतलब क्या? हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डील की जा सकती है, हर बिजनेस के लिए अलग अलग होगी. किसी एक बिजनेस के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल है, किसी दूसरे बिजनेस के लिए वो कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. राइट? न्यू एंड लेटेस्ट कंसेप्ट एज फार एज द इंडिया इज कंसर्न. What is the code of business ethics? What are the do's and don'ts? Do's, आपने रेगुलर टैक्सेस पे करते रहने चाहिए गवर्नमेंट को. दूसरा, पे द फेयर रेम्यूनरेशन टू योर एम्प्लॉइज. आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको आप ठीक से, सही ढंग से, सही टाइम पे पैसे देते रहो. इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट. आप जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो वो स्पूरियस नहीं होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करने चाहिए. सप्लाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस. रिस्पेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर के राइट्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए. यूज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द सोसाइटी, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ. डोंट्स, डू नॉट डिस्ट्रॉय द हेल्दी कंपटीशन. मोनोपोली में मत जाओ. अगर कोई कॉम्पिटिटर बन के आया है तो उसको कंपटीशन करने दो, मैं इसको भी खाएगा उसको भी खाएगा. दैट काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट बी देयर. डोंट चीट द एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स. डोंट क्रिएट अ काइंड ऑफ मोनोपोली. अवॉइड होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. अभी रख, बाद में बेचेंगे जब प्राइस बढ़ेगा. डोंट. सप्लाई अवेलेबल है, सप्लाई इट. डोंट क्रिएट द सीक्रेट और अनरीजनेबल एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स कमाने की आवश्यकता नहीं है. व्हाट यू शुड बी अवॉइडिंग? अनफेयर कंपटीशन. कंसंट्रेटिंग. कंसंट्रेटिंग कि हम लोग सेलर ही लिमिटेड हो. कंसंट्रेटिंग. इकोनॉमिक पावर, हम ही सब कुछ, हमारे आगे कुछ नहीं. अडानी, अंबानी, आजकल तो उनका भी इकोनॉमिक पावर कम होने लग गया है क्योंकि वो भी आपस में कॉम्पीट करने लगे, बिग कॉन्ग्लोमरेट्स. क्रिएटिंग कार्टेल्स, जो कि आपके टेलीफोन इंडस्ट्री में आज की तारीख में है. क्रिएटिंग कार्टेल्स फॉर सप्लाई ऑफ प्राइसेस. एंड देन एक्सेप्ट व्हाट? सर्विस फर्स्ट, प्रॉफिट नेक्स्ट. टू द एक्सटेंट पॉसिबल. प्रॉफिट कमाना जरूरी है. एट एकत्वम वी एक्चुअली फॉलो इट, वी लिटरली फॉलो इट. तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि बंदा आता है और उसको हमको हैंडल करना पड़ता है. एट दैट टाइम वी डोंट लुक इनटू द कमर्शियल्स, वी लुक इनटू द सर्विस फर्स्ट, कि वो सामने वाले बंदे के लिए क्या सही है. कस्टमर इज द किंग. बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. यू शुड नॉट बी वेरी मच क्रूएल टू द सोसाइटी, यू शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स द सोसाइटी. लास्ट वाला,
दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों बनाई गई? कॉर्पोरेट्स के लिए। कॉर्पोरेट्स के लिए क्यों? क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, जेल किसको करें वो डाउट था। एंड फॉर दैट पर्पस दे हैव ब्रॉट द डिफरेंट कंसेप्ट कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें द कॉर्पोरेट्स आर मेड सोशली रिस्पॉन्सिबल, they are also supposed to take care of the society। सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल की हर ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है आज की तारीख में, हाउ विल दे परफॉर्म द सीएसआर एक्टिविटीज, द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज, एम्स टू कंट्रीब्यूट द सोशल गोल्स, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स पब्लिक इन जनरल, एंड क्रिएट्स द कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। किसकी? कॉर्पोरेट्स की। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जो भी कंपनी चला रहे हैं, उनकी भी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फॉर दैट पर्पस दे आर सपोज टू क्रिएट अ सीएसआर कमिटी। ये बेसिकली अप्लाई होता है टू द लिस्टेड कंपनी, टू द प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज। दिस डज नॉट अप्लाई टू ऑल द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सीएसआर कंसेप्ट अप्लाई नहीं होती है। दिस अप्लाइज टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ओनली। टू whom it is applicable? Companies with the net worth of more than 1500 crore or more, turnover of 1000 crore or more, or net profit of 15 crore or more. Such kind of either of the three। किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर आप पूरे करके चले गए, और लिखा हुआ इसलिए एक भी क्राइटेरिया पूरा किया तो आपको सीएसआर अप्लाई होगा। दे शुड सेट अप द सीएसआर कमिटी। व्हाट दैट सीएसआर कमिटी इज? बोर्ड रिपोर्ट टू डिस्क्लोज सीएसआर कमिटी कंपोजिशन। मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर एक्टिविटी शुड बी 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स। पिछले 3 साल का जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, उसका 2% आपका इस साल में सीएसआर के ऊपर खर्चा होना जरूरी है, मैंडेटरी है, एप्रोप्रिएशन होना ही चाहिए। मतलब आपने अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया तो आपको 20 करोड़ रुपए सीएसआर एक्टिविटी पे खर्चा करना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेट द सीएसआर रिपोर्ट इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। हर लिस्टेड कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो आता है वो चेक कर लीजिए, उसमें सीएसआर रिपोर्ट हमेशा जुड़ा हुआ होता है। उन्होंने सीएसआर एक्टिविटीज कहां कहां किस किस तरह से की, दैट इज मेंशन्ड इन दैट। What are the CSR committees? Minimum 4 directors should be there. Out of the total number of directors, minimum 4 should be the members of committee. Meeting at least twice a year. Recommends the policy of CSR कि आप क्या क्या खर्चा करोगे एंड उसका बजट कैसे होगा और उस पर मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। That will be their role and responsibility. किस तरह की एक्टिविटीज आप कर सकते हैं? Eradicate hunger, poverty and malnutrition wherever you are observing it. मतलब ये सारी एक्टिविटीज में से कोई सी भी एक्टिविटीज आप कैरी ओवर कर सकते हो। प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। प्रमोट एजुकेशन एंड वोकेशनल स्किल्स फॉर चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड। इंप्रूव मैटरनल हेल्थ एंड रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, एनिमल वेलफेयर, एग्रो फॉरेस्टिंग एक्सेट्रा। मेजर्स टू बेनिफिट आर्म फोर्सेज, वेटरन्स, वॉर विडोज and their dependents, promote the rural sports, contribute to the Prime Minister Relief Fund and social economy। ये सबसे सस्ता है, सबसे इजी है। तुमको सीएसआर का खर्चा करना है, तुम एक्टिविटी ढूंढो ही मत, चुपचाप पीएम रिलीफ फंड में पैसा ट्रांसफर करो, बात खत्म, स्टोरी ओवर। तुम्हारी एक्टिविटीज कैरी ओवर करने की आवश्यकता ही नहीं है। स्लम एरिया डेवलपमेंट एटसेट्रा। व्हाट आर द एलोकेशन ऑफ फंड्स? मिनिमम 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years। और अगर तुमने कंप्लाई नहीं किया, अगर तुमने सीएसआर नहीं किया, 2% खर्च नहीं किया, तो क्या? नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर पेनल्टी अंडर 135। However, non-disclosure about CSR policy and its implementation in the board's report attracts penalties of no less than 50,000, which may extend to 25 lakh rupees। 25 लाख रुपए तक की पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। एंड एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर, मतलब डायरेक्टर जो कमिटी के मेंबर्स हैं, उनके ऊपर पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years, 3 साल की कैद। shall be punishable with an imprisonment of 3 years and with a fine not less than 50,000, which may extend to 5 lakh rupees or both। मतलब जेल भी होगी और पनिशमेंट के तौर पे पैसा भी देना पड़ेगा। तो these kind of things are included in the corporate social responsibility। Is it point right? So this is about it, about the social responsibility। Next session, that is tomorrow morning at 8:30, not 8 o'clock, but 8:30 will be starting with the writing practice of social responsibility first। और एक बार वो खत्म हो जाए उसके बाद में we will be going ahead with the concept related to
द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, कल प्रिंसिपल्स करें या फिर ये करें, क्या कहते हैं उसको, इमर्जिंग मोड्स, दोनों का वेटेज सेम है। व्हाट वुड यू लाइक? ठीक है, कल प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद परसों के दिन, दैट इज ऑन मंडे, इन द मॉर्निंग सेशन इटसेल्फ विल बी कंडक्टिंग द सेशन, क्योंकि दोपहर में पिक्चर देखने जाना है। विल बी कंप्लीटिंग द रिमेनिंग 2 चैप्टर्स कंसेप्ट्स। बाकी के 2 चैप्टर्स के कंसेप्ट्स हम लोग खत्म कर लेंगे। और अगर समय मिला उसी दिन पे तो हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस 1 चैप्टर के निपटा लेंगे और बाकी बचे हुए राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग ट्यूसडे को करेंगे, राइट? So that's it for the day. We'll be meeting on tomorrow at 8:30 a.m. Thank you.